There are two types of encryption, symmetric and asymmetric. Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it. अच्छा, यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंदर एक हमारे पास है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आपके पास सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एलिस को बॉब को अगर कोई डेटा सेंड करना है तो वो इस डॉक्यूमेंट को किसी भी पासवर्ड से सेंड कर देगा या कर देगी। उसके बाद जब वो आपके पास यहाँ पे बॉब के पास पहुँचेगा, उसके पास उसका पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड से जिसने एलिस ने फॉर एग्जांपल इसका पासवर्ड हेलो 123 था, तो वो इसी पासवर्ड को ईमेल कर देगा और उस ईमेल से वो इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेगा। लेकिन इसके अंदर रिस्क आपके पास क्या है सिमेट्रिक में, कि अगर ये ईमेल किसी और के पास चली गई, इंटरनेट एक आपके पास ग्लोबल फोरम है, तो आपके पास जो है रिस्क है कि आपका डाटा जो है वो इंटरसेप्ट जो है हो सकता है। ये आपके पास क्या है सिमेट्रिक। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम आ गए अपनी एसिमेट्रिक में। अब एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में दोनों के पास क्या है, दोनों के पास अपनी अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की है। अब इसके अंदर होता क्या है बेटा, आपके पास
अब इस डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हम करेंगे ये कि सबसे पहले जो बॉब के पास उसकी जो पब्लिक की होगी वो अपनी पब्लिक की किसको देगा, एलिस को। और एलिस की जो पब्लिक की है वो किसके पास आ जाएगी, बॉब के पास। जब दोनों के पास एक दूसरे की पब्लिक कीज आ जाएंगी, पब्लिक कीज के बाद अब ये जो डाटा इनक्रिप्ट करेगी, ये डाटा इनक्रिप्ट करेगी जो इसके पास पब्लिक की है, किसकी है, बॉब की। उस की से इसने इस डाटा को इनक्रिप्ट किया और इसने इस डाटा को भेज दिया वापस उसके पास। अब बेटा ये डाटा इसको जब ही अनलॉक कर सकेगा जब ये अपनी प्राइवेट की इस डाटा के ऊपर लगाएगा। अब ये जो दोनों कीज है मेरे पास, पब्लिक और प्राइवेट, एलिस और बॉब की, ये दोनों एक दूसरे से डिराइव तो नहीं हुई है लेकिन एक दूसरे से लिंक हुई हुई है। मकसद ये कि इट्स लाइक टू कीज दैट आर सिमिलर टू बी यूज्ड फॉर अ सिंगल इनक्रिप्शन मेथड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो है दो कीज है, पब्लिक की और प्राइवेट की। और दो कीज जो है अली के पास है, पब्लिक की और प्राइवेट की। मैंने अपनी पब्लिक की भेजी अली को और अली ने अपनी पब्लिक की भेजी मुझे। अब होगा ये कि अली के पास जो डेटा होगा वो मेरी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके जब मुझे वो डाटा भेजेगा तो मैं अपनी प्राइवेट की से जो हूँ उसको ओपन कर सकूंगा। यही चीज जो है यहाँ पे हो रही है। आई एम रिपीटिंग इट बैक अगेन, लिसन क्लोजली। Now, the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. दोनों ने यहाँ पे पब्लिक कीज अपनी एक्सचेंज कर ली। Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security. अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब यहाँ पे इसके पास फाइल आई तो ये अपनी प्राइवेट की से उस डॉक्यूमेंट को अनलॉक कर रहा है। अब ये इंक्रिप्शन ऐसी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप के पास किसी और के पास की चली भी जाती है तो इट रियली डजेंट मैटर क्योंकि दोनों कीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा बुक के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। This is chapter number 3 point this one, okay। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सबसे पहले तो मुझे एन्क्रिप्शन की ज़रूरत क्यों है, इस वजह से ताकि डेटा को मैं अपने नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकूं, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो। मुझे हमेशा से रिस्क होता है कि मेरा डाटा जो है वो इंटरसेप्ट तो नहीं हो रहा, कोई हैकर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है, एन्क्रिप्शन ऑल्टर्स डेटा, encryption alters data into a form that is not readable by that is unreadable by anybody for whom the data is not intended to। it means कि मैं अपने डाटा को एक ऐसी फॉर्म के अंदर अपने पास कन्वर्ट कर रहा हूँ जो कोई और जो है वो समझ समझ ना सके। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो तीन के टाइटल्स होते हैं, एक साइफर टेक्स्ट होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फॉर एग्जांपल हासिल इज अ गुड स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है। जब ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में जाएगा तो ये किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा जो साइफर टेक्स्ट है। अब उस साइफर टेक्स्ट को हम अपने किसी भी फाइल्स में भेज सकते हैं, लेकिन उस साइफर टेक्स्ट को जो इनक्रिप्टेड है किसी और लैंग्वेज में हो गया है उसको दोबारा से अनलॉक करने के लिए मुझे की ज़रूरत होगी। ये आपके पास क्या है, आपके प्लेन टेक्स्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट आपका वो टेक्स्ट है जो इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम के बाद जनरेट हो रहा है। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन बेटा क्या है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में आप डेटा भेजते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम पासवर्ड्स दैट द अदर पर्सन आल्सो हैव एट द सेम टाइम। एंड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर इसी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है जिसमें हमारे पास पब्लिक की हैं जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और प्राइवेट की सिर्फ हमारे पास होती हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको वीडियो से एक्सप्लेन किया, दिस इज राइट, स्टिल राइट हियर। तो डू यू हैव एनी कंफ्यूजन टिल हेयर, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सर जो इंक्रिप्शन है, जी जी। सॉरी, जो इंक्रिप्शन है वो सेव करती है, मतलब बचाती है कि डाटा लीक ना हो। बेटा इनक्रिप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी जो है कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं या मेरे जो हैं वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं कुछ इस तरह से करके।
जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, और उनका ये कि अगर वो डिटेल्स किसी और के पास चली गई तो मेरी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो सके, तो वो ये करता ये है इनक्रिप्शन इस पूरे कंटेंट को, ताकि कोई और ना पढ़े, वो इसको कर देगा और लैंग्वेज के अंदर। एट इस तरह से इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। अब इस तरह ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे आपके पास लगा देगा कोई किसी भी किस्म का कोई भी पासवर्ड। अब ये पासवर्ड जो है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अली को दिया हुआ है, तो अली के पास ये फाइल जाएगी, वो पासवर्ड लगाएगा, तो मेरी जो है एज इट इज सेम बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहां पर सामने आ जाएंगी। ये इनक्रिप्शन है। इनक्रिप्शन का काम ये है कि वो आपके डाटा को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि अनअंडरस्टैंडेबल नहीं होती किसी भी अननोन के लिए, या जिसके लिए वो डाटा नहीं है। डू यू गॉट इट? ये समझ आया? यस सर। आप कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, मेरी क्लास में जितने भी लोग हैं बेटा, आप में से किसी को अभी तक कोई भी कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं सर, मसला नहीं है इसमें कोई। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका है, और 3 स्टार्ट करने से पहले अब आई एम मूविंग ऑन टू अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ताकि पास्ट पेपर भी हम साथ साथ सॉल्व करते रहें। सर तू इतना छोटा था? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तू इतना छोटा था। हाँ बेटा, 2 छोटा तो नहीं था, पढ़ाया मैंने ऐसे है कि जल्दी ख़त्म हो गया। जब आप अच्छा। बुक ओपन करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये भी सर। अच्छा, आज की क्लास में मैं सॉल्व करता हूँ मई जून 2023 का पेपर 1 1, और मई जून सीरीज के जो दोनों पेपर जिसके अलावा हैं वो मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं P2। तो अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो आप लोग उनमें से देख सकते हो।